In earlier introductory lecture, I mentioned syntax is the study of phrase, syntax is the study of sentence, syntax is the study of structure. British linguists often use the term grammar for the same level of language that is referred to as syntax by many Americans. So we can say syntax and grammar, they are to some extent synonymous in the books of linguistics. Actually, syntax was to explain the structure. And how to explain a structure, we have to find out its grammatical position. And grammatical position is of word. ग्रामर में जो है ना, हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि कोई वर्ड जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. तो ये वर्ड लेवल पर ग्रामर में जो है लेबल एग्जिस्ट करते हैं. अब ये जो वर्ड हैं, इनका एक्चुअल ग्रामेटिकल स्टेटस डिटरमिन होता है इनके यूज से, ना कि इंडिपेंडेंट वर्ड से. कल भी इसकी बात हुई थी कि इंडिपेंडेंट वर्ड जो है वो ये डिफाइन नहीं कर सकता कि वो अगर उसका नाउन का भी यूज है और वर्ब का भी यूज है, तो कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है या नाउन है, जब तक उसे यूज न किया जाए. जब यूज करेंगे तो तब हमें उसका ग्रामेटिकल स्टेटस पता चलेगा. अब जब उसे यूज करते हैं तो जाहिर है कि दूसरे वर्ड्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनता है. जब वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बने जिसमें या सब्जेक्ट ना हो या वर्ब ना हो या दोनों ना हो, तो वो फ्रेज कहलाता है. और अगर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो क्लास कहलाता है ग्रामर में. मतलब पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेवल है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जो है वो फ्रेज और क्लास है. इसलिए आप दो किस्म के जो हैं वो सिंटेक्स के अंदर दो किस्म की जो स्टडीज हैं उनको जानते हैं. एक है आईसी एनालिसिस, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, आईसी एनालिसिस, और दूसरा है पीएस यानी फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर. और फ्रेज स्ट्रक्चर की ही आगे एडवांस फॉर्म जो है वो टी डायग्राम जो है वो है. अब सबसे पहले तो वर्ड लेवल पर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो मालूम होना चाहिए कि ये क्या है. दूसरा ये कि फ्रेज और क्लास की सेंस होनी चाहिए. तो फ्रेज की डेफिनेशन यहाँ पर की गई है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which functions as a unit and with the exception of the verb phrase itself does not contain a finite verb. Phrase is a group of words which function as a unit, but with the exception of verb phrase, it does not contain a finite verb. By the way, verb phrase, I think that is taken as a class because its subject is thought you. A finite verb is one that can take as its subject a pronoun such as I, we, he, she, it, they. Thus, we can have I see, he sees, they saw, but not I seeing, he to see, we seeing. Mean these are pronouns, these are subject, and these subject have agreement with their verb. Either they use present form or present form
with addition of morpheme of s are past, but they directly present participle cannot be used with pronoun, or infinitive cannot be used, or participle cannot be used. There are 5 commonly occurring types of phrases in English: noun phrase, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase, and preposition phrase. ग्रामर में तो हम सिंपली इनको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो फ्रेज जो फंक्शन परफॉर्म करे उस पे ही उसका लेबल होता है. यानी व्हेन अ फ्रेज acts as a noun, it is called noun phrase. When a phrase acts as adjective, it is called adjective phrase. When it acts as adverb, it is called adverb phrase. And these phrases are part of a class or sentence. A noun phrase is a group of words with a noun as its head word. So there can be up to 3 noun phrases in a simple sentence, as the underlined units in the following simple sentences show. The young man threw the old dog a bone. So 3 noun phrases are the young man, the old dog and a bone. हम तीनों में देख सकते हैं कि जो एक तो वही है कि ये फंक्शन जो है नाउन का कर रहे हैं, दूसरा ये कि इनका जो हेड वर्ड जिसके साथ डिटर्मिनर अटैच हुए वो कौन सा है. तो देखिए हेड वर्ड जो है वो मैन है, और मैन के लिए द और यंग 2 डिटर्मिनर है, यानी एक आर्टिकल है एक एडजेक्टिव है. इसी तरह डॉग के लिए भी एडजेक्टिव ओल्ड और आर्टिकल द यूज किया गया है, और मिलके एक फ्रेज बनी है जिसका हेड वर्ड जो है वो डॉग ही है. बाकी 2 उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. थर्ड में बोन जो है वो हेड वर्ड है और उसके लिए जो है आर्टिकल यूज किया गया है. तो हमने देखना है कि जो वर्ड डिफाइन करने वाले हैं उनको हमने नहीं फोकस करना, बल्कि जो डिफाइंड हो रहा है उसको हमने फोकस करना है. तो हेड वर्ड अगर जो है वो नाउन है तो उस वक्त कहा जाएगा कि वो नाउन फ्रेज है. एक सेंटेंस में एक नाउन फ्रेज हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है. सेकंड सेंटेंस में है दैट रिच मैन विल बिल्ड हिज एल्डेस्ट डॉटर अ फाइन हाउस. आई थिंक बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल की तरह है, सिर्फ डिटर्मिनर में अब दैट का और हिज का यूज किया गया है, और तीनों जो हैं वो फ्रेजेस में 3 वर्ड्स जो हैं वो मौजूद है. लेकिन हेड वर्ड मैन, डॉटर और हाउस है, जो कि नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज है. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which modifies a noun. Like adjectives, these words can be either attributive, that is usually preceding but occasionally following a noun. Adjective phrase modifies a noun, यानी वो फ्रेज होगी अगर किसी नाउन को वो एक्सप्लेन करे, क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे. जैसे कि द चाइल्ड लाफिंग हैप्पीली रैन आउट ऑफ द हाउस. इसमें जो फ्रेज लाफिंग हैप्पीली है, इस वो हमने समझना है कि 2 वर्ड्स हैं, एक लाफिंग है एक हैप्पीली है, और इनसे मिलके एक फ्रेज बन गई है. अब ये फ्रेज जो है वो 5 टाइप्स में से कौन सी टाइप्स है, तो हमने देखना है कि ये जो चाइल्ड है उसके लिए क्या है. क्या ये उसका नाउन है, क्या उसका ये वर्ब है, क्या उसका ये. तो अगर ये उसको एक्सप्लेन करने वाली है, उसके एडजेक्टिव का फंक्शन करने वाली है, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे. अब देखेंगे फर्स्ट में क्या किया गया कि द चाइल्ड के बाद कोमा यूज किए गए और एक फ्रेज ऐड की गई है, और ये फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, द चाइल्ड को मॉडिफाई कर रही है. सेकंड में अटरली फैसिनेटिंग नॉवल. इसमें नॉवल जो दैट नॉवल जो है
एक सब्जेक्ट है और उसमें नॉवल जो है वो हेडवर्ड है तो नाउन होगा। उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जो अटरली फैसिनेटिंग के वर्ड है वो इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। ये भी याद रखें कि दैट से लेकर नॉवल तक अगर चारों वर्ड्स को एक फ्रेज समझेंगे तो वो नाउन फ्रेज होगा, लेकिन अगर आप अटरली फैसिनेटिंग पर फोकस करेंगे तो दैट विल बी एडजेक्टिव फ्रेज। The letter was unbelievably true, क्योंकि सब्जेक्ट tells something about predicate and predicate has a subject। तो द लेटर इसमें सब्जेक्ट है तो बाकी पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट का फंक्शन करने वाली जो फ्रेज होगी जैसे अनबिलीवेबली रूड जो है वो प्रेडिक्टिव फ्रेज कहलाएगी। ही सीम्ड एक्सट्रीमली प्लेजेंट, तो इसी तरह एक्सट्रीमली प्लेजेंट जो है यहाँ पे प्रेडिक्टिव फ्रेज है। वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद a verb as a head verb. Verb phrases can be either infinite। He has been singing, has been singing को इकट्ठा किया, हेडवर्ड जो है वो सिंगिंग है, बाकी उसके ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये फ्रेज जो है वो वर्ब फ्रेज कहलाएगी। फिनिट वर्ब की एग्जांपल थी और नॉन फिनिट की एग्जांपल जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में है, जैसे टू हैव संग या टू गो या टू मूव, ये नॉन फिनिट की एग्जांपल हो। बाकी प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, पास्ट में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, तो उस वक्त उसको आप फिनिट वर्ब नहीं कहेंगे। A simple sentence can have only one finite verb phrase, he may be following us, और एक से ज्यादा भी फ्रेजेस हो सकती हैं, जैसे was invited, was told, would be refunded। तो एडवर्ब वर्ब फ्रेज में फोकस जो है वो वर्ब पे होगा और वर्ब जो है वो उसका हेडवर्ड होगा। अगर जो वर्ड है वो किसी फॉर्म की सूरत में आ रहे हैं तो फिनिट वर्ब कहलाएंगे, और अगर वो इन्फिनिटिव के साथ आ रहे हैं तो तब वो इन्फिनिटिव होंगे, इन्फिनिट वर्ब कहलाएंगे। प्रेपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद प्रेपोजिशन, यानी ऐसी फ्रेज जिसमें हेडवर्ड की बजाय उनकी बिगिनिंग पे फोकस किया जाए, और वो बिगिनिंग जो है वो बहुत उसमें जो है रोल प्ले कर रही हो। जैसे ही अराइव्ड तो क्वेश्चन था कि हो, तो हो का आंसर जो है वो बाय प्लेन है, तो सिर्फ प्लेन से बात नहीं बनती, प्लेन जो है वो नाउन है, लेकिन इसमें हेडवर्ड जो है वो हम समझ रहे हैं कि वो प्लेन नहीं है बल्कि बाय है जो इसका प्रेपोजिशन है। तो जब फ्रेजेस प्रेपोजिशन से शुरू हो तो आपने उनको प्रेपोजिशनल फ्रेज में करना है मार्क। द यंग मैन केम इन, ही केम इन, इसमें द यंग मैन जो है ये नाउन फ्रेज है और ही जो है वो प्रोनाउन है, उसे भी आप नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं। अराइव्ड, विल अराइव, ये वर्ब फ्रेज है। तो फ्रेज क्या है और जो टाइप्स ऑफ फ्रेज हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज। तो इनका यूज फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर जब का जो पी मार्कर होता है या वो लेबल करने होते हैं पार्ट्स, तो उस वक्त चूंकि फ्रेज की बेस पे सबसे पहले आप सेपरेट करते हैं किसी सेंटेंस को और फिर आगे जो है उसकी फर्दर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो फ्रेज के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हमें ये समझना होता है कि सिर्फ फ्रेज बताना काफी नहीं है,
बल्कि हमने बताना है कि वो फ्रेज कौन सी है। Class is a group of words which contains a finite verb but which cannot occur in isolation. That is, a class constitute only a part of sentence. क्लास की भी जैसे जो टाइप्स हैं फ्रेज की, तो क्लास में पहले तो दो टाइप्स हैं, एक मेन क्लास कहलाती है और एक सब ऑर्डिनेट क्लास कहलाती है। मेन क्लास के बगैर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, सब ऑर्डिनेट क्लास के बगैर हो सकता है। तो जैसे ये है कि ही बिलीव्ड, ये मेन क्लास है। आगे दैट द अर्थ वाज राउंड, जिसमें कोई ना कोई कनेक्टर हो, जैसे दैट है, एज है, तो उसके बाद जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लास होती है। और सब ऑर्डिनेट क्लास जो है वो जो फंक्शन परफॉर्म करती है, अगर नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगी तो नाउन क्लास होगी, वर्ब का फंक्शन परफॉर्म करे वर्ब क्लास होगी, एडजेक्टिव का करे एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब का करे एडवर्ब क्लास होगी। तो जैसे हमने अभी फ्रेज के बारे में डिटरमिन किया था, सेम जो है तरीके से हम अब क्लास के बारे में और सिर्फ सब ऑर्डिनेट क्लास के बारे में ऐसा जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं। तो noun class is a group of words containing a finite verb and functioning like a noun. एक तो ये है कि वो लाजमी जो है वो फॉर्म मतलब कि हो, उसके अंदर कोई वर्ब यूज किया गया हो तभी क्लास होती है, वर्ब ही नहीं यूज किया गया तो वो क्लास नहीं होती, वो फिर फ्रेज होती। तो जब टायर्ड ही वाज टायर्ड आ गया है तो जाहिर है कि ये एक क्लास है। अब शुरू हो रही है दैट ही वाज टायर्ड से, तो सबऑर्डिनेट है। तो अब ही सेड, क्वेश्चन ये है कि व्हाट ही सेड, तो व्हाट का जो आंसर होता है वो हमेशा नाउन होता है। तो दैट ही वाज टायर्ड, ये पूरे का पूरा नाउन का रोल अदा कर रहा है, ये नाउन है। और ये नाउन का रोल अदा कर रहा है तो ये नाउन क्लास है। अगर एक वर्ड का होता तो नाउन होता, अगर एक से ज्यादा वर्ड होते और उसमें वर्ब ना होता तो नाउन फ्रेज कहलाते। और अगर ये एक से ज्यादा वर्ड के भी हैं और इनके अंदर वर्ब भी मौजूद है, अगर दैट के कनेक्टर को हटा के देखें तो वो कंप्लीट सेंटेंस है। तो ऐसे पार्ट को, ऐसी क्लास को जो कि डिपेंड कर रही है मेन क्लास के लिए, अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ये जो है फंक्शन के लिहाज से यहाँ पर नाउन क्लास हो। The noun clauses can be replaced by pronouns. कि अगर हम उनको सिंप्लीफाई करके देखना चाहें तो हम उनको प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्लास, जिस तरह एडजेक्टिव फ्रेज वो थी कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे थे, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे थे। यहाँ पर विच वॉन द कंपटीशन एक पूरी क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, वॉन इसमें वर्ब है, विच इसमें कनेक्टर है, और ये मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, द डॉग को। द डॉग विच वॉन द कंपटीशन इज एन अल्सेशन। तो ये यहाँ पर क्लास जो है ये एडजेक्टिव क्लास है। ये जिस तरह के विच, हु और होम के साथ या दैट के साथ आते हैं तो उस लिहाजा इनको रिलेटिव क्लास भी कहती है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के साथ आ रहे हैं तो इनको रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। बाकी ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। कहते हैं कि बाउस का जो है ये रिलेटिव क्लास में दैट, विच, होम जो है इनको ओमिट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे द बुक जॉन बॉट इज मिसिंग, द कोट शी वोर इज रेड, द मैन वी मेट वाज माई अंकल। तो दैट, विच और होम को अगर मिस भी किया है फिर भी ये क्लास जो है इसका वही फंक्शन है जो पहली क्लास का था, लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लास ही रहेगी। Occasionally, adjective class can begin with when. I remember the day when we won the cup. असल में यहाँ when का फंक्शन वही है जो पिछले में who और which और that का था, उस बुनियाद पर इसलिए यहाँ पर भी इसको adjective class ही कहेंगे। Adverbial class functions like an adverb in giving information about when, where, why,
हाउ और इफ एन एक्शन अकर्ड, यानी किसी वर्ब के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। व्हेन ही अराइव्ड वी वर ऑल स्लीपिंग, तो टाइम बताएं, प्लेस बताएं, क्यों का जवाब दें, कैसे का जवाब दें, तो उस वक्त जो है क्लासेस जो होंगी वो एडवर्बियल क्लासेस होंगी। तो व्हेन ही अराइव्ड जो है वो आंसर कर रहा है टाइम को, वेयर वी कैन ऑल सी इट प्लेस को है पुट इट वेयर वी कैन ऑल सी इट, और दे वन द मैच बिकॉज दे वर द बेस्ट प्लेयर्स में रीजन जो है वाई का आंसर किया जा रहा है। ही पुट इट अवे एज क्वाइटली एज ही कुड, इसमें हो का आंसर किया जा रहा है। इफ यू वांट एनी मोर यू विल हैव टू गेट इट योरसेल्फ, इसमें भी वैसे हो को ही रिस्पॉन्ड किया गया है कंडीशन के साथ। ये जिस तरह क्लासेस फ्रेजेस की डिवीजन है, उसी तरह सिंटैक्स में क्लासेस की डिवीजन है। लेकिन पी मार्कर या फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के लिए आपको फ्रेजेस की बेसिकली जरूरत पड़ती है कि आप उनको जो है वो करते हैं। एडवांस सेंटेंसेस में जाके क्लासेस को भी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिस तरह फ्रेजेस को किया जाता है, और उनके भी इसी तरह जो है वो ट्री डायग्राम या जो है पी मार्कर जो है वो बनाए जाते हैं। तो असल में सिंटैक्स जो है, एक तो यही था कि सेंटेंस को उसके पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश थी। दूसरा ये था कि उनके लिए उन्होंने कुछ डिवाइसेस या टूल्स जनरेट कर लिए, जैसे आईसी एनालिसिस ने पहले जो है वो उनको जो है वो जैसे एक डायग्राम की सूरत में उनको प्रेजेंट करना शुरू किया। फिर जो है वो पी मार्कर जो है आईसी एनालिसिस की ज्यादा एडवांस और बेहतर फॉर्म की सूरत में सामने आया, क्योंकि आईसी एनालिसिस में किया यह जाता था कि वो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बना लिए जाते थे। तो ऐसे वर्ड जो कि सेंटेंस में अपनी राइट प्लेस पे नहीं है, तो उनको वहां पर बयान करने में बहुत मुश्किल थी। इसलिए आईसी एनालिसिस जो है उसकी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को रिमूव किया गया और फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अल्टीमेट फोकस जो है वो सेंटेंस है, सेंटेंस में ही फ्रेजेस हैं, सेंटेंस में ही क्लासेस हैं। तो सेंटेंस जो है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है वो देखते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस है वो सामने दिए गए हैं, दे आर द स्टेटमेंट्स। Each sentence is an independent linguistic form, not included by virtue of any grammatical construction in any larger linguistic form. Each sentence is an independent linguistic form. And the sentences which are mentioned above, the man died, the dog chased the cat, the girl is a good student, the child is very tall, the boy ran up the hill. These sentences meet that criteria, meet that definition, they fit that definition. Sentences can be divided into 4 subtypes: declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. ग्रामर की बुक्स में भी आपने इन सेंटेंसेस को इस तरह से पढ़ा होगा। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस। स्टेटमेंट्स को चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव हैं, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, मेक रिक्वेस्ट और कमांड्स, प्रोहिबिशंस। तो come here, don't do that, try to help, these are example of imperative sentences. दोनों declarative और imperative sentences have period or full stop at the end. Interrogative sentences ask questions. They usually begin with question word like when, why, where.
or any auxiliary verb like did, can, will, would, and they have a question mark at the end. Did you see your brother yesterday? Can't you hear that awful noise? When did he arrive? Exclamatory sentences are used to express surprise, alarm, indignation. Actually, they express feelings of the mind. So he's going to be, you can't be serious, what a fool I was, all have exclamation mark. And they express feelings, they states of mind. Sentences on the basis of their structure are called simple, compound, or complex. Simple sentence has only one finite verb or has only one clause. Compound have two clauses or two or more simple sentences linked by coordinating conjunction and, but, so, either or, neither nor, or, then, that, yet. Complex sentences consist of simple sentence and one or more subordinate clause. In compound sentence, only main clauses are linked and coordinating conjunctions are used. In complex sentence, one main and at least one dependent or subordinate clause is required. Just she became queen when her father died because she was the eldest child. There are two subordinate clauses: when her father died and because she was the eldest child. तो अगर एक सबऑर्डिनेट क्लास है या दो हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे. Subordinating conjunctions की example after, although, though, as, because, before, if, since, until, till, when, where, whether, which, that, while, ये सारी subordinate conjunction की example है और ये subordinate clauses के शुरू में आती है. Compound complex sentence are, as their name suggests, combination of complex sentences joined by coordinating conjunctions. यानी पहले ही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था या एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड सेंटेंस था और दोनों को जो है वो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन कर लिया गया है एक्सटेंड करने के लिए, बट लगा के, एंड लगा के, तो वो कहलाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये सेंटेंसेस क्या हैं, क्या है अपने फ्रेज क्या है, क्लासेस क्या हैं. एक तो हमने उनकी डेफिनेशन से रिकग्नाइज करना होता है, फिर उसकी जो टाइप होगी वो कैसे डिटरमिन होगी, वो अपने फंक्शन की वजह से होगी, उस अपने हेड वर्ड की वजह से होगी. इन्हीं को जो है वो जब डायग्राम में शो किया जाता है तो फोकस जो है वो ये होता है कि आपने एक एक पार्ट पर पहुंचना है कि ये वर्ड जो है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और उस ऊपर वाले स्टेप पे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को डिफाइन करना होता है फ्रेज फॉर्म में कि वो फ्रेज कौन सी है, प्रेपोजिशन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. ज्यादा कॉमन जो नाउन और वर्ब फ्रेजेस होती हैं जिन पर आमतौर पर सेंटेंस को डिवाइड करके उसके बाकी जो पार्ट हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है. तो सेंटेंस is basically study of structure, study of constituents of sentence or parts of sentence at word level, parts of sentence at phrase level, parts of sentence as uh, class level. Sentence itself has types, for example, declarative,
interrogative, exclamatory, and imperative. There is another type that is called optative that can be excluded in exclamatory. And on the basis of structure, they are simple, compound, complex, and complex compound sentences. टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमने उसके फ्रेजेस को या उसकी क्लासेस को और उसके बाद उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटरमिन करना हो, तो पहले हमें ये पता हो कि ये सेंटेंस कौन सा है और इसको हमने जो है वो किस तरह से करना है। अभी जो इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक का पेपर हुआ, तो उसमें जो सेंटेंस था उसको हम कह सकते हैं कि वो एक कंपाउंड सेंटेंस है, यानी दो मेन क्लासेस को एंड से जो है वो जोड़ा गया है। तो उसका उन्होंने ट्री डायग्राम बनाने के लिए जो है वो स्टूडेंट को कहा है, तो उसमें वो जो एंड था उसको वो स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके, और उसकी वजह से उन्होंने एंड को जो है वो जैसे कंजंक्शन समझते हुए कंजंक्शन क्लास और इस तरह बना दिया, जो कि इनकरेक्ट।